Assalamu alaikum. If m dx plus n dy is non-exact, that is del m upon del y is not equal to del n upon del x, then del n upon del x minus del m upon del y divided by m is a function of y. मैंने आपको बताया था ट्रिक, याद कैसे रखना है। जैसे ये हमने ये हमारा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है del m upon del y, तो इसको हम अपनी जगह पे रखते हैं। अब क्या करेंगे, n को शिफ्ट कर देंगे और उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो n किसका फंक्शन है, x का, तो ये बन जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ x। अब मैं लिख रहा हूँ del n अपॉन del x अपनी जगह पे, del m अपॉन del y को शिफ्ट करता हूँ और m से डिवाइड कर देता हूँ, ये बन जाएगा मेरा फंक्शन ऑफ y। तो जिसको आप शिफ्ट कर रहे हो उसी का फंक्शन बनेगा हमारा। तो हमने यहाँ पे del n अपॉन del x को शिफ्ट किया था तो फंक्शन ऑफ x बन गया। यहाँ पे del m अपॉन del y को शिफ्ट किया था तो फंक्शन ऑफ y बन गया। So therefore integrating factor is nothing but e to the power integral f of y dy. Multiply integrating factor to the equation and make exact. That is integrating factor into m dx plus integrating factor into n dy equal to 0. इससे हमको न्यू m dash and n dash मिलेगा and that we have to use in the solution. Integral of m dash dx plus integration of n dash dy equal to 0. नॉर्मली हम लोग m और n यूज करते थे, बट चूंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन नॉन एग्जैक्ट है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो न्यू m डैश और n डैश मिलेगा उसको आपको यूज करना। सो फॉर एग्जांपल सॉल्व y xy plus e to the power x dx minus e to the power x dy equal to 0. Solution, compare with m dx plus n dy equal to 0. So m we are getting y xy plus e to the power x. अब मैं y को inside the bracket multiply करता हूँ, so xy square plus y e to the power x and we are getting minus e to the power x. del m अपॉन del y तो आपको मिल जाएगा 2xy प्लस e टू द पावर x, बिकॉज y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। हमारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है और n का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x and we know that both the values are not equal, so therefore equation is non exact. So del m upon del x minus del m upon del y whole divided by m is equal to, वैल्यू पुटअप करते हैं, del m upon del x मिल गया माइनस e टू द पावर x, del m upon del y मिल गया 2xy plus e to the power x and denominator we are having m. So after simplifying the term we are getting the function minus 2 upon y which is complete function of y. अगर complete function of x मिलता है तो रूल 1 से सॉल्व होगा, complete function of y मिलता है तो रूल 2 से सॉल्व होगा। अगर मिक्सचर मिलता है तो ये रूल 1 और रूल 2 से सॉल्व नहीं होगा, तो फिर हमें इसको दूसरा मेथड चेक करना पड़ेगा। So integrating factor is nothing but e to the power integral f of y dy. e to the power इंटीग्रल क्या मिल गया हमको, f of y की वैल्यू माइनस 2 अपॉन y dy, सो माइनस 2y कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन y dy, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y, टेक माइनस 2 इन द पावर ऑफ y, द टर्म बिकम e to the power log y to the power minus 2. So simply we are getting y to the power minus 2 which is same as writing 1 upon y square. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया 1 अपॉन y स्क्वायर। अब 1 अपॉन y स्क्वायर से हम क्या करेंगे, m और n को मल्टीप्लाई करेंगे। So after multiplying we are getting the term which is exact. So m dash मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद x plus e to the power x upon y square, n dash is minus e to the power x upon y square. The solution is given by integration of m dash dx plus integration of n dash dy equal to c. m dash क्या हमारा x plus e to the power x upon y square, n dash must be independent of x, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, so integral will be 0. So integral of x dx plus 1 upon y square will be constant because integral हमारा with respect to x चल रहा है.
सो x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, 1 अपॉन y स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x इक्वल टू c. So that's my final answer. Clear है यहाँ तक? Next example, we are having 2x y square minus y dx plus x dy equal to 0. Again, similar fashion we will going to try. Compare with m dx plus n dy equal to 0. m मिल गया 2x y square minus y, n मिल गया x. Partially differentiating with respect to y, we are getting 4xy minus 1. Del n upon del x, we are getting 1. Obviously, both the terms are not equal. So hence equation is non-exact. So integrating factor, we are getting minus 2. So minus, 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 minus. This part will become 1 upon y square. So m dash we are getting 2x because इसको simplify करने के बाद minus 1 upon y, and n dash we are getting x upon y square. So solution is given by m dash. So 2 take outside, integral of dx 1 upon y, integral of 1 dx इक्वल टू c. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल टू c. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग द टर्म, ये बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू c. सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इक्वल टू cy. So that's my final answer. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज पुट अप करने के टाइम पे मिस्टेक किया था. मैंने पहले del m upon del y पुट कर दिया था, देन वी हैव सब्स्टिट्यूटेड del n upon del x. So we are getting in the form of x square y minus x equal to cy. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ. थर्ड रूल ये बताता है इफ m dx plus n dy is equal to 0 is non-exact, that is del m upon del y is not equal to del n upon del x, and equation is of the form f1 xy multiplied by y dx plus f2 xy multiplied by x dy equal to 0, and mx minus ny is not equal to 0, then integrating factor is given by 1 upon mx minus ny. इक्वेशन इस फॉर्म का होना चाहिए जो हमने येलो में हाईलाइट किया है. इस फॉर्म में अगर इक्वेशन होता है तो इसका सॉल्यूशन होगा, फाइंड करेंगे mx माइनस ny के फॉर्म में. तो सॉल्यूशन इज y टाइम xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर dx प्लस x टाइम xy माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर dy इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन में क्या आ रहा है, y आउटसाइड है, सेकेंड टर्म में x आउटसाइड है, मतलब ये हमारा गिवन फॉर्मेट में है. सो वी विल गोइंग टू फाइंड mx माइनस ny. सो m है मेरा y टाइम xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इस पूरे टर्म को x से मल्टीप्लाई करना है. देन n आई एम हैविंग x xy माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, इस पूरे टर्म को y से मल्टीप्लाई करना है. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग 3x क्यूब y क्यूब विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन mx माइनस ny. तो यहाँ पे मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन 3 टाइम्स x क्यूब y क्यूब. अब जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 अपॉन 3 x क्यूब y क्यूब इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y क्यूब dx प्लस 1 अपॉन 3 x क्यूब y क्यूब x स्क्वायर y माइनस x क्यूब y स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ऑब्वियसली जब हम इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग 1 अपॉन 3 1 अपॉन x स्क्वायर y प्लस 2 अपॉन x dx प्लस 1 अपॉन 3 1 अपॉन x y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y dy इक्वल टू 0.
तो ये वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पर dy इक्वल टू 0। यहाँ पर भी मेरा टर्म dy मिसिंग है। सो m डैश मिल गया 1/3 1/x² y प्लस 2/x, n डैश मिल गया 1/3 1/xy² माइनस y। The solution is given by integration of m dash dx plus integration of n dash dy equal to c। तो m डैश की वैल्यू पुट करते हैं। अब n डैश में ऐसा टर्म चाहिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। तो ये टर्म तो नहीं ले सकते बिकॉज इसके पास x है। 1/y में x नहीं है तो हम यहाँ पे उसको लेंगे 1/3 माइनस 1/y dy। तो यहाँ पे 1/3 1/y इंटीग्रल के बाहर 1/x² dx प्लस 2/3 इंटीग्रल के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 1/x dx minus 1/3 integral 1/y dy equal to c। Now we know that derivative of 1/x is minus 1/x square। So integral of minus 1/x square क्या हो जाएगा 1/x। यहाँ अगर मैं बात करूँ इंटीग्रल ऑफ 1/x square तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/x। माइनस को शफल कर रहे हैं। सो इंटीग्रल ऑफ 1/x square इज माइनस 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन log x 1/y का इंटीग्रेशन log y इक्वल टू c। सो 1/3 सब में से कॉमन आ जाएगा। सो 2/3 log x माइनस 1/3 log y, ये दो टर्म में से हम 1/3 कॉमन ले रहे हैं और ये बन जाएगा 2 log x विल बिकम log x स्क्वायर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लोगरिथमिक। तो ये 2 क्या होगा x के पावर में चले जाएगा तो log x स्क्वायर माइनस log y 1/3 कॉमन माइनस 1/3 xy, ये राइट साइड में आके प्लस 1/3 xy हो जाएगा। log a माइनस log b इज नथिंग बट log a अपॉन b। सो 1/3 log x स्क्वायर अपॉन y 1/3 xy प्लस c। अब ये 3 क्या होगा राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो राइट साइड से क्या होगा 3 कैंसिल तो 1/xy बच जाएगा प्लस इट विल बिकम c/3। तो c/3 को एडजस्टमेंट के लिए वी हैव टेकन c डैश। तो log x स्क्वायर y अपॉन log x square upon y is nothing but 1/xy plus c dash। So finally we got the answer log x square upon y equal to 1/xy plus c dash। क्लियर है यहाँ तक? Next example we are having sol xy sin xy plus cos xy into y dx plus xy sin xy minus cos xy x dy equal to 0। Again the equation is of the form y f1 xy dx plus x टाइम f2 xy dy। यहाँ पे y आउटसाइड है x आउटसाइड है तो हम क्या करेंगे mx माइनस ny फाइंड करेंगे। इक्वेशन m को टर्म m को आप x से मल्टीप्लाई करोगे टर्म n को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी आर गेटिंग 2xy cos xy। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट 1/2xy cos y। तो इट्स नॉट इक्वल टू 0। सो जो इक्वेशन हमारे पास है m उसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। So after multiplying, we are getting y upon 2 tan xy, sin upon cos is 10, 1 upon 2x dx plus x upon 2 tan xy minus 1 upon 2y dy equal to 0। The equation is exact because integrating factor से कोई इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा। So m dash is y upon 2 tan xy plus 1 upon 2x, n dash is x upon 2 tan xy minus 1 upon 2y। The solution is given by इंटीग्रल ऑफ m डैश dx प्लस इंटीग्रल ऑफ n डैश dy इक्वल टू c। अब m डैश रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y अपॉन 2 कॉन्स्टेंट हो जाएगा बाहर आ जाएगा y अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ tan xy dx प्लस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन y dy इक्वल टू c। मैंने आपको बताया था जब हम इंटीग्रेशन के टाइम पे अगर लॉग वाले टर्म लेते हैं तो c को भी हम क्या करेंगे लॉग के फॉर्म में लेंगे। Now what is integration of tan xy? Log of sec xy
इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है? लॉग ऑफ sec x। तो x की जगह पे हमारे पास वेरिएबल क्या है? एक्स वाई है, तो ये बन जाएगा log sec एक्स वाई। लेकिन एक्स वाई भी तो सेकेंड टर्म है मेरे पास, कंपोजिट टर्म। एक टर्म है मेरा 10 एक्स वाई, सेकेंड टर्म है जस्ट एक्स वाई। तो जो कंपोजिट टर्म होता है उसका डेरिवेटिव हम कहाँ लेते हैं? डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, तो बचा गया सिर्फ डिनोमिनेटर में वाई। तो वाई वाई गेट कैंसिल, 1/2 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/2 1/y का इंटीग्रेशन log y इक्वल टू log c। So log sec xy upon 2 plus 1/2 log x minus 1/2 log y equal to log c. Now it's the property log आप कॉमन ले रहे हो, log a plus b log a plus log b माइनस log c। सपोज आपके पास ऐसा मिल रहा है, तो log तो कॉमन लेंगे, जो एडिशन वाले टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो वही पार्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। sec एक्स वाई के साथ में x मल्टीप्लाई हो गया, और y क्या आ गया? उसके डिनोमिनेटर में आ गया, और 1/2 जो कांस्टेंट आ रहा था वो राइट साइड में आके log 2 के साथ में c हो जाएगा। तो अगेन c इज अ कांस्टेंट, तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन वी आर गेटिंग अ कांस्टेंट, अगेन इट विल बिकम c स्क्वायर, अगेन अ कांस्टेंट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो फाइनली वी आर गेटिंग x टाइम्स sec xy इक्वल टू yc। क्लियर है यहाँ तक? ये पार्ट को अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ तो कुछ ऐसा नजर आएगा। 1/2 कांस्टेंट ले लिए, 1/2 राइट साइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 2 टाइम्स log c। तो लोगरिथमिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा c स्क्वायर। हम इसको c डैश ले लेते हैं। सो c स्क्वायर को हमने c डैश लिया है, y टाइम्स वी आर मल्टीप्लाइंग। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? So next part is a linear differential equation. A differential equation is said to be linear if dependent variable and its derivative appear only in the first degree. नॉर्मली हमारी इक्वेशन जो होती है वो फॉर्म होता है इसका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें x होता है इंडिपेंडेंट और y होता है डिपेंडेंट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y और उसका डेरिवेटिव, उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। ध्यान रहे dy अपॉन dx में जो d का पावर है उसको तो हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, और उसका जो है इंडेक्स जो होता है पावर, उसको बोलते हैं डिग्री। लीनियर इक्वेशन के बिगिनिंग में हमने देखा था व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर एंड व्हाट डू मीन बाय डिग्री। So dependent variable and derivative appear only in the first degree. The equation is of the form dy by dx plus py equal to q, where p and q are the function of x और constant only. अब ये ध्यान रखना dy by dx इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग ही इंटीग्रल होगा। यहाँ पे मेरे पास है dy by dx, तो p और q फंक्शन हो जाएगा ऑफ x, बिकॉज डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है? dx है। So integrating factor will be e to the power integral p dx, and the solution is given by y times integrating factor equal to integral q times integrating factor dx plus c। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जब dy by dx लिखोगे तो डिनोमिनेटर में जो ऑपरेटर रहेगा, ये जो dx हमारा डिनोमिनेटर में ऑपरेटर है, इसके अकॉर्डिंग ही इंटीग्रेट होगा। तो जहां कहीं भी आप इंटीग्रेशन करोगे रिस्पेक्ट टू dx ही करोगे। और लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में वेरिएबल क्या है? y है, इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड में y आ जाएगा। If I am going to have the second form, equation of the form dx upon dy plus px equal to q,
अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, y आ रहा है, इसका मतलब है पी एन क्यू विल बी फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट ओनली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जहां कहीं भी लास्ट फॉर्म में dx था, वहां पे हम क्या करेंगे, dy पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, प्रीवियस फॉर्म में y था, अभी x आ गया, इंटीग्रल ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। अब ये फॉर्म में देखो लेफ्ट साइड में x है और सबके साथ में dy है, और इससे पहले वाले फॉर्म में लेफ्ट साइड में y है और सबके साथ में x है। तो ये डिपेंड करता है आप किस फॉर्म में अपने एग्जाम्पल को कन्वर्ट करना चाहते हो, dy बाई dx में या dx बाई dy में। dy बाई dx में तब कन्वर्ट किया जाता है जब आपके पास सिंगल y प्लस या माइनस में प्रेजेंट हो क्वेश्चन में, और अब dx अपॉन dy तब कन्वर्ट करते हो जब आपके पास प्लस x या माइनस x क्वेश्चन में होता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, dy बाई dx कन्वर्जन करने के लिए आपको प्लस y या माइनस y क्वेश्चन में होना जरूरी है, या dx अपॉन dy में कन्वर्ट करने के लिए प्लस y प्लस x या माइनस x करना जरूरी है। So the equation is given by x minus 1 dy upon dx minus x minus 2 y equal to x cube 2x minus 1. Now equation can be written as dy upon dx. अब यहाँ पे हम जब इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे, dx अपॉन dy का मल्टीपल क्या है, 1। dy अपॉन dx का मल्टीपल क्या है, 1। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका dy अपॉन dx का मल्टीपल क्या है, x अपॉन x माइनस 1। सो डिवाइड थ्रू आउट बाय x टाइम्स x माइनस 1। तो ये बन जाएगा x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब 2x माइनस 1 अपॉन x टाइम x माइनस 1। नाउ विच इज लीनियर। अब जो y का मल्टीपल है वो क्या रहता है, मेरा p रहता है। द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। तो y का मल्टीपल जो रहता है वो p होता है। तो y का मल्टीपल क्या है, माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन x टाइम x माइनस 1 dx। अब इंटीग्रल में जो टर्म है x माइनस 2 अपॉन x टाइम x माइनस 1, हम इसको मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, x का डिग्री 1 है, x माइनस 1 का डिग्री 1 है, तो इट विल बी a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म, collect the coefficient of x and constant, equating both side we are getting minus 2 is equal to minus a, which means a equal to 2, a plus bx is equal to x, because x का मल्टीपल a plus b है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में x का मल्टीपल 1 है, सो a plus b equal to 1, सो b is equal to minus 1। अब ये सारी वैल्यू उठा के हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर देते हैं। सो वी आर गेटिंग e टू द पावर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। a की वैल्यू क्या मिला हमको, 2, तो 2 अपॉन एक्स हो गया। b की वैल्यू मिल रही है माइनस 1, सो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और पहले से माइनस मेरे पास बाहर है। अब माइनस को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ध्यान रहे ये सारा जो कैलकुलेशन चल रहा है एक्सपोनेंशियल के पावर में चल रहा है। सो e टू द पावर माइनस 2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स dx प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल log x, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल log x माइनस 1। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस log x स्क्वायर प्लस log x माइनस 1। सो e टू द पावर log a माइनस log b, तो हो जाता है log a अपॉन b। सो log x माइनस 1 पॉजिटिव है, माइनस log x स्क्वायर नेगेटिव है, तो x स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। e टू द पावर log बिकम 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी आर गेटिंग x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर।
The solution is given by y times integrating factor equal to integral q times integrating factor dx plus c. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला, x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज q, एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन. यहां पर हमने जो फाइंड की दैट इज माई q. तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला, x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट. x माइनस वन कैंसिल. तो 2x माइनस वन का इंटीग्रल वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी. अब राइट हैंड साइड से x कॉमन ले सकते हैं. वी आर गेटिंग x माइनस वन प्लस सी. अब y लेफ्ट में रख के बाकी सबको राइट में शिफ्ट कर दो. तो ये x माइनस वन और राइट हैंड साइड का x माइनस वन कैंसिल. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल बिकम एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन. So next example we are having sin 2x dy by dx equal to y plus 10x. अब देखो dy by dx बनाने के लिए आपको प्लस y या माइनस y क्वेश्चन में होना चाहिए. तो यहाँ पे प्लस y मुझे मिल रहा है. तो sin 2x dy by dx माइनस y इक्वल टू 10x. अगेन dy by dx का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 1. तो डिवाइड थ्रू आउट बाय sin 2x. So y upon sin 2x equal to 10x upon sin 2x which is linear. So p की वैल्यू मिल गई माइनस वन अपॉन साइन टू एक्स. q का वैल्यू मिल गया 10x अपॉन साइन टू एक्स. We have to find integrating factor e to the power p dx which is same as e to the power minus 1 upon sin 2x dx. Now what if 1 upon sin cosec 1 upon sin 2x का बन जाएगा cosec 2x dx. Now what is integration of cosec 2x? cosec 2x का इंटीग्रेशन होता है log of 10x by 2. अब यहाँ पे x का मल्टीपल कितना है, 1 है. राइट हैंड साइड में जाने के बाद हाफ हो गया. तो वैसे ही कोसेक 2x है तो 2x का हाफ क्या बन जाएगा, 1. कोसेक x का बन गया log 10x by 2 बिकॉज x का मल्टीपल कोसेक में 1 था. कोसेक 2x है मल्टीपल कितना हो गया, 2 आ गया. तो 1 अपॉन 2 से आप डिवाइड करोगे log ऑफ 10x. 2x का एंगल क्या हो जाता है, हाफ 1 हो जाता है. तो वही हमने यहाँ पे किया माइनस 1 अपॉन 2 log ऑफ 10x. अब माइनस हमने एज इट इज रखा है 1 बाई 2 को 10x के पावर में रख दिया. तो e टू द पावर माइनस log 10x रेज टू 1 बाई 2 का मतलब होता है रूट 10x. e टू द पावर log रूट 10x माइनस 1 रेज में आ गया इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10x. So we are getting integrating factor 1 upon under root of 10x. Therefore, the solution is given by y times integrating factor equal to integral q times integrating factor plus c. So y integrating factor क्या मिला, 1 upon under root of 10x equal to q क्या है हमारे पास 10x upon sin 2x into 1 upon under root of 10x dx plus c. 10x को क्या हम लिख सकते हैं sin x upon cos x. And what is sin 2x? 2 sin x cos x. तो ये दोनों वैल्यू हमने पुट कर दिया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10x dx प्लस c. साइन साइन गेट कैंसिल, cos into cos become cos square x. 1 upon cos square x is sec square x. So 1 upon 2 integral sec square x 1 upon under root of 10x dx plus c. तो राइट हैंड साइड का भी इंटीग्रल को सॉल्व करना बाकी है, कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है. अगर कंप्लीटली सॉल्व हो जाते तो इंटीग्रल की साइन हट जाती. तो पुट 10x इक्वल टू t. 10x का डेरिवेटिव sec square x dx इक्वल टू dt. तो sec square x dx की जगह पे आ गया dt. 1 अपॉन 2 जो बाहर था हमने उसको अंदर ले लिया 1 अपॉन रूट t. व्हाट वी नो, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 अपॉन 2 रूट x. तो 1 अपॉन 2 रूट x का इंटीग्रल क्या बन जाएगा, रूट x. तो वी आर गेटिंग रूट t प्लस c. बट t की वैल्यू क्या है 10x. So y times
1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10x प्लस सी। अब अंडर रूट ऑफ 10x को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, so we are getting y equal to 10x plus c times under root of 10x. Last example, solve 1 plus y squared dx equal to e to the power 10 inverse of y minus x dy. अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ओपन है, आपके पास चॉइस है, चाहे आप इसको dy अपॉन dx के फॉर्म में बनाओ या dx अपॉन dy के फॉर्म में बनाओ। dy अपॉन dx के फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में प्लस y या माइनस y देखना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में मेरे पास प्लस y या माइनस y है? नहीं है। और अगर dx अपॉन dy का फॉर्म बनाना है तो मुझे प्लस x या माइनस x देखना पड़ेगा। तो क्या प्लस या माइनस मेरे पास है? हाँ है, मेरे पास यहाँ पर माइनस x है। तो मैं क्या करूंगा, dx अपॉन dy का फॉर्म बनाऊंगा। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy इज इक्वल टू e टू द पावर 10 इनवर्स ऑफ y माइनस x। अब ये जो dy था इसको हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो डिनोमिनेटर में आ गया। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy माइनस x लेफ्ट में आके प्लस x हो गया इक्वल टू e टू द पावर 10 इनवर्स ऑफ y। अब dx अपॉन dy का जो मल्टीपल है 1 होना चाहिए, लेकिन 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 1 अपॉन डिवाइड थ्रू आउट बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। So we are getting dx upon dy plus x upon 1 plus y square equal to e to the power 10 inverse of y upon 1 plus y square, which is linear. तो ये मेरा फॉर्म आ गया dx upon dy plus px equal to q। अब ध्यान रहे डिनोमिनेटर में ऑपरेटर क्या है? dy। इसका मतलब है थ्रू आउट द एग्जाम्पल हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। और यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है? p है, तो यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और राइट हैंड साइड जो भी वो पूरा क्या है? मेरा q है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e टू द पावर p dy। मैंने कहा था ना कि आपको विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? डिनोमिनेटर में y है, इसलिए इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y होगा। सो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ y। So therefore solution is given by x time integrating factor is equal to integral q time integrating factor dy plus c. So x time integrating factor equal to q की वैल्यू क्या है? e to the power 10 inverse of y upon 1 plus y square। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमको e to the power 10 inverse of y ही मिला है, dy plus c। Now using the laws of indices, e to the power m multiplied by e to the power n, which is nothing but e to the power m plus n। तो ये रहेगा e to the power 2 times 10 inverse of y dy upon 1 plus y square plus c। Now put tan inverse of y equal to t, so 1 upon 1 plus y square dy equal to dt। So integral will become e to the power 2t dt plus c। Now what is integration of e to the power x? E to the power x और 2t का डेरिवेटिव इन डिनोमिनेटर, so e to the power 2t upon 2 plus c। So finally we are getting x time e to the power 10 inverse of y equal to 1 upon 2 e to the power 2 time 10 inverse of y plus c। अगर क्वेश्चन में प्लस या माइनस एक्स होगा तो dx अपॉन dy के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का ये जो टर्म है x, ये डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्म बना रहे हो। अगर आप dx अपॉन dy का फॉर्म बना रहे हो तो ये जो ऊपर वाला x है ये लेफ्ट में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला जो y है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? Then next solve 1 plus xy squared dy plus y cube dx equal to 0। So we are simplifying the term 1 plus x और xy square का हम क्या करते हैं? x कॉमन लेते हैं, we are getting 1 plus y square dy। सेकेंड टर्म से we are taking y कॉमन, 1 plus y square dx equal to 0। अब यहाँ पे आपके पास अगेन द क्वेश्चन इज ओपन, या तो आप x के फॉर्म में कन्वर्ट करो या तो y के फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब या तो आप dy अपॉन dx बनाओ या बनाओ dx अपॉन dy।
तो dy अपॉन dx बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा प्लस वाई या माइनस वाई है क्या, और dx अपॉन dy बनाने के लिए प्लस एक्स या माइनस एक्स है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो dx के साथ में यहाँ पे मल्टीपल में आ रहा है, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन dy के साथ में यहाँ पे दो टर्म पॉजिटिव में आ रहे हैं। अगर हमें दोनों में से कोई एक फॉर्म बनाना है तो बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तभी दोनों चीजें अलग हो जाएगी आपकी। dy बाई dx बनाओ या dx अपॉन dy बनाओ, लेकिन बीच में क्या आना चाहिए, आपके पास प्लस आना चाहिए। तो वो यहाँ पर पॉसिबल है, वो x के साथ में हो रहा है, तो विल गोइंग टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन dy। तो राइट साइड से विल गोइंग टू टेक dy कॉमन, it will become 1 plus x time 1 plus y square plus y times 1 plus y square dx upon dy equal to 0। देखो dx के साथ में जो मल्टीपल टर्म है उसको देख के हम जज नहीं कर सकते कि dy अपॉन dx बनाना है कि dx अपॉन dy बनाना है। हमको देखना है प्लस एक्स या माइनस एक्स का कोई टर्म प्रेजेंट है क्या, या प्लस वाई या माइनस वाई का कोई टर्म है क्या। तो यहाँ पे प्लस एक्स वाला कोई टर्म है मेरे पास, बीच में साइन प्लस होना चाहिए, तभी तो हम स्प्लिट कर सकते हैं, वो फॉर्म में बना सकते हैं। So divide throughout by y times 1 plus y square. So we are getting 1 upon y 1 plus y square plus x times 1 plus y square upon y times 1 plus y square plus dx upon dy equal to 0. So we are getting the form dx plus dy plus x upon y, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y 1 प्लस वाई स्क्वायर। देख रहे हो बीच में प्लस एक्स अपॉन वाई आ गया, जिससे दोनों टर्म स्प्लिट हो गया। So we are getting p equal to 1 upon y and q equal to minus 1 upon y times 1 plus y square। डिनोमिनेटर में वेरिएबल क्या है, y है, तो इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू y चलेगा, और ऊपर क्या है हमारे पास x है, तो सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, x होगा। सो p क्या है हमारा 1 अपॉन y, 1 अपॉन y का इंटीग्रल log y, सो e टू द पावर log y नथिंग बट y। सो सॉल्यूशन में मैंने बताया था आपको, ऊपर वेरिएबल क्या चल रहा है, x चल रहा है, तो x लेफ्ट साइड में आ जाएगा। So x into integrating factor equal to integral q times integrating factor dy plus c। So x टाइम y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो y मिल गया, q का वैल्यू है माइनस 1 अपॉन y टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिल गई y, तो y विल गेट कैंसिल आउट। सो x into y, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर which is same as tan inverse of y plus c। So finally we are getting xy plus tan inverse of y equal to c।